برطانوی ایوان بالا کے رکن لارڈ ڈینیل ہنان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ گرین پاکستان، بلین ٹری سونامی، جنگلی حیات اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے اقدامات کی تعریف۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بھی ملاقات میں موجود۔ وزیر اعظم عمران خان کی مسلم دنیا کے نامور اور جید اسکالرز کے ساتھ خصوصی نشست کا پہلا حصہ آج دن 2 بجے پی ٹی وی سے نشر ہوگا۔ اس نشست میں مسلم امہ کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں ایف بی آر کی جانب سے 32% اضافے کے ساتھ 29 کھرب 20 ارب کی ریکارڈ ٹیکس وصولیاں بہترین معاشی سرگرمیوں کی عکاس ہیں۔ گزشتہ سال اسی مدت میں 22 کھرب 4 ارب کا ٹیکس اکٹھا ہوا تھا۔ صرف دسمبر کے مہینے میں 600 ارب کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا ٹویٹ۔ ایوان صدر آج دن 1 بجے سے شام 4 بجے تک عوام کے لیے کھولا جائے گا۔ داخلہ جنوبی گیٹ کے راستے ہوگا۔ تمام مہمانوں اور شہریوں کے لیے فیس ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیا جائے گا۔ کسی کو الیکٹرانک ڈیوائس، موبائل فون اور کیمرہ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نئی اور روشن امیدوں کے ساتھ سال 2022 کا آغاز۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شاندار آتش بازی۔ دنیا بھر میں رنگا رنگ تقاریب۔ آکلینڈ، سڈنی اور دبئی کے برج خلیفہ، جبکہ لندن، پیرس، نیو یارک سمیت دنیا بھر میں آتش بازی سے آسمان دلکش روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ پاکستان عظیم ملک ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ نئے سال کے آغاز پر سمجھتا ہوں کہ تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمان میں فساد عام آدمی کی نظر میں سیاستدانوں کا وقار کم کرتا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ الیکشن، معیشت، سیاسی اور عدالتی اصلاحات کے لیے بات کریں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ 159 ہندو یاتری واہگہ بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گئے۔ ہندو یاتری پاکستان میں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے 4 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں۔ دورے کے دوران ہندو یاتری سمادھی راجہ رنجیت سنگھ، کٹاس راج مندر سمیت پاکستان میں موجود دیگر مذہبی مقامات کا دورہ کریں گے۔ بھارت میں ہندو دہشت گردوں کی جانب سے عیسائیوں پر حملوں میں تیزی۔ 1 ارب 38 کروڑ آبادی ملک میں 2% مسیحیوں کے لیے زندگی بچانا عذاب بن گیا۔ آر ایس ایس اور بی جے پی کی قیادت میں جنونی ہندوؤں نے مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں سمیت تمام اقلیتوں کے لیے ہندوستان کی زمین تنگ کر کے رکھ دی۔ سانتا کلاز، نذر آتش، گرجا گھروں میں توڑ پھوڑ، دعائیہ تقریبات درہم برہم۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 556 کیسز رپورٹ، مزید 6 افراد جاں بحق۔ اموات کی مجموعی تعداد 28,933 ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا کے نئے مریضوں کی شرح 1.08% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 51,141 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ کرونا سے دنیا بھر میں مزید 5,000 سے زائد ہلاکتیں، لاکھوں نئے کیس۔ امریکہ میں 5,72,000، فرانس میں 2,06,000، برطانیہ میں 1,89,000 اور اسپین میں 1 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ۔ اومیکرون سے بھی لاکھوں افراد متاثر۔ ویکسین کی بوسٹر شاٹ کرونا کے مریضوں کے ہسپتال داخلے کو 88% تک روکنے میں مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ برٹش ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی۔ نئے سال کے آغاز پر سہانا موسم۔ ملک بھر میں بادل، پیر سے اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع۔ طویل خشک سالی ختم، سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑوں پر ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری۔
वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PCB को स्टेडियम की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। चेयरमैन की स्टेडियम की तामीर 2025 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। ब्राज़ील में सेलो 17 रोड रेस का 96वां एडिशन। अफ्रीकी एथलीट छाए रहे। मर्दों में इथोपिया के बैले बिजाब फाते रहे। बैले बिजाब ने 15 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 44 मिनट और 54 सेकंड्स में तय किया। खवातीन का मुकाबला कीनिया की सांद्रा फ्लेस जैपट के नाम रहा। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सदफ अली खान। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। आने वाले साल से अच्छी उम्मीदें हैं, इसलिए कि पहले 2-2.5 साल कोरोना में चले गए। अब ये जो नया साल आ रहा है इसमें बेहतरी नज़र आ रही है, क्योंकि बिज़नेस कारोबार चल रहा है लोगों का। इमरान खान साहब काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि बेहतरी आ जाए, और बहुत उम्मीद है मुझे कि इमरान खान साहब की जो कोशिशें हैं वो इंशाल्लाह रंग लाएंगी। आने वाले साल से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और इमरान खान के बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह अपने काम को जारी रखेंगे। नए आने वाले साल के लिए मैं तमाम कौम को मुबारकबाद भी दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि नया आने वाला साल जो है हमारे लिए बेहतरी लाएगा, खुशियाँ लाएगा और आसानियाँ लाएगा। हम अपने बिल्कुल पुरुमीद हैं अपनी फेडरल गवर्नमेंट से। वो बड़े अच्छे काम कर रही है और बहुत सारे अच्छे स्टेप्स उन्होंने लिए हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले लॉर्ड डैनियल हन्नान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। लॉर्ड डैनियल हन्नान ने वज़ीर आज़म से ग्रीन पाकिस्तान विजन की तारीफ की। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़, नेशनल पार्क्स और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दामात ग्रीन पाकिस्तान विजन का हिस्सा हैं। लॉर्ड डैनियल हन्नान ने कहा कि वज़ीर आज़म के इक़दामात को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। लॉर्ड डैनियल हन्नान गवर्नर पंजाब की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। मुलाकात में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी मौजूद थे। और नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन आज दोपहर 2:05 पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आलमी शोहरत याफ्ता मुस्लिम स्कॉलर्स के दरमियान क़ौमी रहमतुल्लाह अलमीन अथॉरिटी के तहत मुनक़िदा रियासत मदीना, इस्लाम, मुआशरा और इखलाक़ी बेदारी के मौज़ू पर सेमिनार का पहला हिस्सा नशर करेगा। इस नशिस्त में मुस्लिम उम्मा के माजी, हाल और मुस्तक़बिल के बारे में गुफ्तगू होगी। नशिस्त में उन तमाम उमूर का जायज़ा लिया जाएगा कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाकर उन्हें आम शहरी से अजीम रहनुमा बना दिया। दुनिया में बढ़ती हुई मजहबी मनाफरत और तशद्दुद से आलमी अमन मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्लिम उम्मा के वो वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने इस्लामोफोबिया के मसले पर दुनिया की तवज्जो मबसूल कराई और ये बावर कराया कि हमें एक दूसरे के अकायद का एहतराम करने के साथ साथ इंतहा पसंदी की वजूहात का भी खात्मा करना होगा। रिपोर्ट करेंगे इकरामुल्लाह महसूद।
اسلام امن و سلامتی کا دن ہے اور یہ دوسروں کے عقائد اور مذہبی شخصیات کے احترام کا درس دیتا ہے. تاہم بعض مغربی ملکوں میں آزادی اظہار رائے کے نام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، جس سے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. وزیراعظم عمران خان کی مدبرانہ قیادت میں پہلی مرتبہ عالمی سطح پر اسلام فوبیا کا مسئلہ اٹھایا گیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بعض حلقوں کی جانب سے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے، جس کے سبب انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے. Islamophobia is another pernicious phenomena that we all need to collectively combat. In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, terrorism has been associated with Islam by some quarters. This has increased the tendency of right-wing, xenophobic and violent nationalist extremists and terrorist groups to target Muslims. The UN Global Counter-Terrorism Strategy has recognized these emerging threats. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرانا ہے. The man in the street in the West cannot distinguish between what is a moderate Muslim and what is a radical Muslim. So you have stuff like in New Zealand, a man walks into a mosque and shoots 50 people. And secondly, the reason for Islamophobia is people in the West do not understand when our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mocked or ridiculed or insulted, they can't understand the reaction amongst the Muslims. So it's very important for the OIC to play its part in explaining to the Western world. وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان نہ صرف امہ بلکہ عالمی سطح پر انتہا پسندی کے خاتمے میں ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے فعال کردار ادا کر رہا ہے. اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں FBR کی جانب سے 32% اضافے کے ساتھ 2,920 ارب کے ریکارڈ ٹیکس وصولیاں بہترین معاشی سرگرمیوں کی عکاسی کر رہی ہیں. وزیر مملکت نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ 2,633 ارب کے ٹیکس ہدف سے بھی 287 ارب زیادہ ہے. فاروق حبیب نے کہا کہ گزشتہ سال اسی مدت میں 2,204 ارب کا ٹیکس اکٹھا ہوا تھا. صرف دسمبر کے مہینے میں 600 ارب کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا. اور ناظرین، ایوان صدر کو آج دوپہر 1 بجے سے شام 4 بجے تک عوام کے لیے کھولا جائے گا. ایوان صدر آنے والے شہریوں کو فیس ماسک پہننا لازمی ہوگا اور کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی دکھانا ہوں گے. شہری ایوان صدر کے جنوبی گیٹ سے داخل ہوں گے اور اس دوران کسی کو الیکٹرانک ڈیوائس، موبائل فون اور کیمرے لانے کی اجازت نہیں ہوگی. ناظرین، صحت کے شعبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا انقلابی قدم. آج سے لاہور ڈویژن اور 20 جنوری سے راولپنڈی ڈویژن کے تمام مستقل رہائشی خاندانوں کو قومی صحت کارڈ کی سہولیات دستیاب ہوں گی، جس کا دائرہ کار مارچ تک پورے صوبے میں پھیلا دیا جائے گا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. صوبہ پنجاب کے 3 کروڑ خاندانوں کو نیا پاکستان صحت کارڈ دینے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، جس کے بعد صوبے کا ہر خاندان پینل پر موجود سرکاری اور نجی ہسپتالوں سے 10 لاکھ روپے تک کا علاج مفت کرا سکے گا. ہسپتال میں داخلے کے دوران نہ صرف ٹیسٹ، سرجریز اور ادویات بلا معاوضہ فراہم کی جائیں گی، بلکہ ہسپتال سے ڈسچارج کے وقت تجویز کردہ ادویات اور واپسی کا کرایہ بھی دیا جائے گا. ڈلیوری کے لیے سیزیرین سیکشن ہوا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا کوئی گردے کی ڈائلسس ہو رہی ہے، کوئی گردے کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، شوگر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، جب آپ ہسپتال میں داخل ہوں گے تو یہ کارڈ اسی وقت فعال ہو جائے گا اور آپ کو اس کارڈ کے تحت علاج معالجے کا سارا بندوبست ہوگا، دوائی بھی ملے گی. مریضوں کے ساتھ ساتھ طب کے شعبے سے وابستہ سوشل ورکرز اور نجی ہسپتال بھی صحت کارڈ کو اچھا قدم سمجھتے ہیں، جس سے ملک بھر میں نجی ہسپتالوں کا جال بچھ جائے گا. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اکراس دی بورڈ جرنلسٹوں کو کوئی سہولت ہیلتھ کی ملی ہو. جرنلسٹ بھی اب کہیں جا کے باعزت طریقے سے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکیں گے. کتنی گورنمنٹس آئی ہیں، سب نے وعدے کیے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کر دکھایا اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے. میں کہوں گا کہ غریب لوگوں کے لیے
हेल्थ कार्ड जो है ना, जिसकी इस टाइम हमें ज़रूरत भी है। गरीब आवाम के लिए क्या आसरा है, जिनके पास पैसे ना हो तो फ्री इलाज करा सकते हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मुझे इस हेल्थ कार्ड की इसलिए ज़रूरत थी कि मेरी बेटी है वो बीमार है, उसके रेड सेल नहीं बनते। पंजाब के पसमानदा तरीन इजला में और खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले 85 लाख खानदान पहले ही सेहत कार्ड से फायदा उठा रहे हैं। उमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। साल 2021 रुखसत हो गया, 2022 को खुशामदीद। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से भी पूरी कौम को मुबारकबाद। नए साल के आगाज़ पर मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात का इन्नेकाद किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा और दूसरे तमाम छोटे बड़े शहरों में शानदार आतिशबाजी से साल नौ का इस्तकबाल किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद, खासतौर पर नौजवानों ने नए साल को भरपूर वलवले के साथ मनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नए साल के आगाज़ पर समझता हूँ हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि इलेक्शन, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। पार्लिमान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नए साल के आगाज़ पर अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि नया साल पाकिस्तान की तरक्की और अमन और इस्तेहकाम का साल साबित होगा और पाकिस्तान को पुरअमन और हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। अपने वीडियो पैगाम में गवर्नर ने इस अज़्म का इज़हार किया कि कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी के लिए उनके साथ खड़े हैं और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 का पाकिस्तान माजी की निस्बत ज़्यादा खुशहाल, मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि पूरी कौम पाकिस्तान को कोरोना से पाक करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। नाज़रीन, दुनिया भर में भी नए साल की आमद पर शानदार तकरीबात हुई। 2022 ने सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में दस्तक दी, जहां 12 बजते ही स्काई टावर रंगों में नहा गया। दुबई के बुर्ज अल खलीफा और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। रंगारंग आतिशबाजी के दौरान आसमान दिलकश रोशनियों से जगमगा उठा। साल नौ पर बरतानिया की तारीखी बिग बैन घंटे ने भी नए साल की नवीद सुनाई और मिलेनियम ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अमेरिका में भी नए साल को पुरजोश तरीके से खुशामदीद कहा गया। इस मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 15,000 अफराद ने समाजी फासले की पाबंदी के साथ नए साल का जश्न मनाया। रूस के रेड स्क्वायर पर आतिशबाजी से साल 2022 का इस्तकबाल किया गया। जर्मनी के शहर बर्लिन में भी रिवायती अंदाज में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। और मुल्क के कौसार मरी में साल नौ के मौके पर मुल्क भर से सयाहों का सैलाब उमड़ आया और माल रोड, जीपीओ चौक और कश्मीर पॉइंट सयाहों से खचाखच भर गए। मरी में शदीद सर्दी के बावजूद रात 12 बजते ही साल नौ की आमद पर सयाहों ने पुरजोश और भरपूर अंदाज से जश्न मनाया। सयाह जीपीओ चौक और माल रोड पर विराजमान रहे और नए साल की खुशी में नौजवान टोलियों की सूरत में मौज मस्तियां और हल्ला गुल्ला करते रहे। वीकेंड और साल नौ पर आने वाले सयाहों ने मरी में चंद दिन कबल होने वाली बर्फबारी और मौसम को भी खूब इंजॉय किया। ताहम इस बार मरी इंतजामिया ने न्यू ईयर नाइट के मौके पर फायरिंग, आतिशबाजी और हुल्लड़बाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी थी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने और पाबंदी पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर रखी थी, जिस पर लेडीज़ पुलिस भी शामिल थी। सयाहों के रिकॉर्ड रश से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। भारत और दुबई से 159 हिंदू यात्रियों पर मुश्तमिल वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते आज सुबह लाहौर पहुंचा। हिंदू यात्री 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं, जहां वो पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा करेंगे और अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली और पाक हिंदू काउंसिल के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर रमेश कुमार ने वफ्द का खैर मकदम किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि वाघा बॉर्डर के जरिए आने वाले तमाम यात्री चार्टर प्रवास के जरिए
ذریعے پشاور جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جب لوگ آپس میں ملیں گے تو دونوں ممالک کے درمیان نفرتیں مٹ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مذہبی ٹورز کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے۔ مذہبی ٹورز سے ہم ٹریڈ اور دیگر شعبوں میں بھی تعاون کو بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہیپی نیو ایئر۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج پاکستان ہندو کونسل نے جو انیشیٹو شروع کیا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ مل کے، اور پاکستان گورنمنٹ نے جو تعاون کیا ہے، اور آج جو یہاں پہ یاتری یہاں پہ پہنچے ہیں 159 یاتری ہیں جو واگا بارڈر کے تھرو آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ پشاور ڈائریکٹ پہنچے ہیں۔ فیتھ ٹورزم جو شروع ہوا ہے وہ آگے اس دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک ایسی محبت کی دیوار بنے گا جو ماضی کی 74 سالوں کی جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کرنے کا ایک سنگ بنیاد بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے بیچ میں یہ جو میں نے انیشیٹو شروع کیا ہے یہ بہت زیادہ آگے نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف بھارت میں ہندو دہشت گردوں کی جانب سے عیسائیوں پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے، جس کے بعد 1 ارب 30 کروڑ آبادی والے ملک ہندوستان میں 2% مسیحوں کے لیے زندگی بچانا عذاب بن گیا ہے۔ ہندوتوا کے علمبردار RSS اور BJP کی قیادت میں جنونی ہندوؤں نے سیکولر بھارت میں مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں سمیت تمام اقلیتوں کے لیے زمین تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ جرمن خبر ایجنسی کے مطابق کرسمس کے موقع پر ہندو شرپسندوں نے آگرہ میں شہر مختلف مشینری اسکولوں کے سامنے سینٹا کلاus کو نذر آتش کیا، جبکہ مشرقی ریاست آسام میں کرسمس کی رات ہندو دہشت گردوں کا جتھا ایک چرچ میں داخل ہو گیا اور دعائیہ عبادات میں رخ نہ ڈالا۔ ہریانہ میں کرسمس کی شام ایک اسکول میں جشن کی تقریب میں ایک ہندو انتہا پسند گروہ کے ارکان نے دھاوا بول دیا اور ہندو نعرے بازی کی۔ گزشتہ ماہ ریاست مدھیہ پردیش میں 50 ہندو شدت پسندوں نے کیتھولک اسکول پر حملہ کیا۔ لاٹھیوں اور پتھروں سے لیس اس جتھے نے اسکول کے املاک کو نقصان پہنچایا اور جے شری رام کے نعرے لگائے۔ بھارت میں مسلمانوں، سکھ اور عیسائیوں کے لیے زمین انتہائی تنگ ہو چکی ہے، جس کے رد عمل میں سکھوں کی خالصتان تحریک زور پکڑ گئی، جبکہ کشمیر سمیت کئی ریاستوں میں مسلمانوں کی علیحدگی کی تحریکیں سر اٹھا رہی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پوری قوم کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے جہاں بھی رہتے ہیں، پوری دنیا کے لیے، بلکہ کہ نیا سال جو ہے خوشیاں لے کر آئے، اور دعا کریں کہ یہ کووڈ اور اومیکرون جیسی بیماریاں ختم ہوں۔ آنے والے سال 2022 کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آنے والا سال بلکہ آنے والا ہر لمحہ ہم سب کے لیے خوشحالی اور ترقی کا پیغام لے کر آئے۔ تمام پاکستانیوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ یہ نیا سال خیر و برکتوں والا، خوشیوں والا، خوشحالیوں والا اور امن کا سال۔ بہت ساری دعائیں ہیں پوری قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ خدا کرے کہ نئے سال کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسائل جس کا ہم سب کو سامنا تھا ان کا کچھ حل سامنے آئے۔ آنے والی خوشیوں کا احساس تو ہے ہر انسان کے پاس، یہی ایک آس تو ہے۔ ہیپی نیو ایئر۔ ناظرین، بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے سال 2021 میں ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران 5 خواتین اور 5 کم سن لڑکوں سمیت 210 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق شہید ہونے والوں میں سے 65 افراد کو فرضی مقابلوں میں زیر حراست قتل کیا گیا۔ ان شہادتوں کے نتیجے میں 16 خواتین بیوہ اور 44 بچے یتیم ہوئے، جبکہ 13 خواتین کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ سال کشمیر کی مزاحمتی تحریک کے روح رواں سید علی گیلانی بھی مسلسل نظر بندی کے دوران انتقال کر گئے۔ چیئرمین تحریک حریت جموں کشمیر محمد اشرف صحرائی بھی حراست کے دوران ہی انتقال کر گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قابض بھارتی فورسز نے گزشتہ سال پرتشدد کارروائیوں کے دوران 67 رہائشی مکانات کو تباہ کیا۔ اس دوران مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال
से 487 अफराद जख्मी हुए, जबकि भारतीय अफवाज और पुलिस की जानिब से घरों पर छापों और क्रैकडाउन ऑपरेशंस के दौरान हुर्रियत कारकुनों, इंसानी हुकूक के मुहाफिज खुर्रम परवेज, तलबा और नौजवानों समेत 2716 अफराद को गिरफ्तार किया गया। और भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गपकार डिक्लेरेशन के रहनुमाओं को हदबंदी कमीशन के मसवदे की सिफारिश के खिलाफ मुजवजा इज्तिमाई धरने से रोकने के लिए घरों में नजरबंद कर दिया गया। KMS के मुताबिक PAGD के तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि अलायंस के रहनुमाओं को घरों में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह नए साल पर हुकाम की तरफ से तोहफा है और यह कश्मीर की असल तस्वीर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह नया साल है और पुलिस लोगों को गैर कानूनी तौर पर उनके घरों में नजरबंद कर रही है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि PAGD के पुरअमन धरने को रोकने के लिए रहनुमाओं के गेट के बाहर ट्रक खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। नाज़रीन, अफगान अबूरी नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अखुंद से अफगानिस्तान के लिए चीन के सफ़ीर वैंग शी ने काबुल में मुलाकात की। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अखुंद ने चीनी सफ़ीर से मुलाकात में अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की फ्राहमी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को मौजूदा सूरत हाल, इंसानी बहरान समेत दीगर मसाइल का सामना है। दुनिया को चाहिए कि वह अफगानिस्तान के साथ अपनी इंसानी इमदाद जारी रखे। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन ने दुनिया पर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और स्पेन में हलाकतों में इजाफा हो गया है। केसेस दोबारा लाखों में पहुंच गए। अमेरिका में 5,72,000, फ्रांस में 2,06,000, बरतानिया में 1,89,000 और स्पेन में 1,61,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान इन ममालिक में 2,000 हलाकतें हुई, जिनमें अमेरिका में सबसे ज़्यादा 1,362 अफराद कोरोना के बायस हलाक हुए। WHO सहबरा ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वहीं डेल्टा के केसेस भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन जुड़वा खतरे हैं, जिनकी वजह से रिकॉर्ड सतह पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। नए वेरिएंट के बायस बेशतर ममालिक में समाजी पाबंदी और मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि मास्क न पहनने की खिलाफ वर्जी पर 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। और मुल्क में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 556 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि कोरोना के नए मरीजों की शरह 1.08% रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 51,141 अफराद के टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,933 हो गई है। और मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि सिंध में गंदम चूहे खा गए, आवाम की शामत आ गई। महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, गंदम की फराहमी में बेकायदगी का खमियाजा लोग भुगत रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुहेल जमाली। कराची समेत सिंध भर में कहीं भी मुनासिब कीमत पर आटा दस्तयाब नहीं। आवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। सिंध में गंदम की चोरी पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का ये बयान कि सखर में 20 अरब रुपए के गंदम के ज़खायर इधर उधर हो गए थे। पूछने पर कहा गया कि चूहों ने खाए, एक ताजियाना है। जैसे सखर में गंदम के 20 अरब रुपए के ज़खायर जो है वो इधर उधर थे। जब उनसे पूछा कि ये गंदम कहाँ चली गई, तो उन्होंने कहा जी यहाँ चूहे बहुत हैं, वो खा गए। हालांकि फिर उन चूहों को बारात नैब ने पकड़ा। उसको जब उन चूहों को पकड़ा गया तो वो 20 अरब रुपए की रिकवरी हुई। अब सवाल ये था ये 20 अरब कहाँ जाते? ये 20 अरब हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को उसको जो रिकवर होते गए हम उनको देते गए। आवाम का कहना है कि सिंध हुकूमत आटे की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकी, जिसके नताइज गरीब लोग भुगत रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट को सस्ता देना चाहिए नहीं आटा, चक्की वाले को मार्केट में गवर्नमेंट होना चाहिए, माल सामान सस्ता करे, आटा सस्ता, गंदम सस्ता करे। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें सरकारी रेट पर गंदम नहीं मिलती। सरकारी निर्ख 50 रुपए के बजाय वो 67 रुपए किलो गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी गंदम में 2 साल रखी हुई गंदम वो हमें देते हैं और उसमें पड़ जाते कीड़े, और हम ऐसी गंदम चलाकर अपने ग्राहक को तो खराब नहीं करेंगे ना, कस्टमर को। सिंध गवर्नमेंट को यही करना चाहिए जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट कर रही है कि अपने लोगों का भला सोच रही है, सस्ता आटा दे रही है। सिंध में गंदम की काश्त इत्मीनान बख्श है।
सिंध हुकूमत अगर इसकी तरसील बेहतर बनाए तो आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। ताहम जब तक गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, सिंध के अवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर रहेंगे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, ओगरा ने जनवरी के लिए एलपीजी की कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 70 रुपये कमी, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 268 रुपये कमी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी घरेलू सिलेंडर 2390 से कम होकर 2321 और कमर्शियल सिलेंडर 9197 रुपये से कम होकर 8929 रुपये हो गया है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 144 रुपये 82 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत बढ़कर 141 रुपये 62 पैसे हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 95 पैसे इजाफे के बाद 113 रुपये 53 पैसे हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत बढ़कर 4 रुपये 15 पैसे इजाफे से 111 रुपये 6 पैसे हो गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन को बजा तौर पर फैमिली चैनल होने का एजाज़ हासिल है। 2021 में पीटीवी नेटवर्क ने तेज़ रफ्तार तरक्की की। डिजिटलाइजेशन और HD स्क्रीन समेत जदीद टेक्नोलॉजी की तमाम तर ज़रूरियात इस कौमी इदारे में सिमट आईं। वज़ारत इत्तलात की मुअस्सर मनसूबाबंदी और अवामी पसंदीदगी की वजह से पीटीवी नेटवर्क एक मुनाफा बख्श इदारा बन गया। सदफ अफजल रिपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा कौमी उमंगों पर पूरा उतरा है। पाकिस्तान का तर्जुमान चैनल PTV मुल्क में दूर दूर तक बसने वाले लोगों को बाखबर रखने का फरीजा अंजाम दे रहा है। कौमी इदारा मुसद्दिका खबरें नशर करने के हवाले से अपनी शनाख्त बरसों से बरकरार रखे हुए है। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात की क़यादत में मुख्तसर अरसे में PTV मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है। पाकिस्तान टेलीविजन को 2021 में जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिजिटलाइज और HD पर मुंतकिल किया गया। इसी तनाजुर में वर्चुअल सेट की टेक्नोलॉजी और मुल्क भर में हमा वक्त लाइव कवरेज का एहतमाम PTV की तारीख में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट विल गो अ लॉन्ग वे पाकिस्तान के बयानिए की मजबूती के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मजबूती के लिए। पाकिस्तान टेलीविजन की खबरों और प्रोग्रामिंग में बेहतरी लाई गई और उम्दा कंटेंट पेश किया गया। पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर नजर आने वाली तब्दीली इदारे में तकनीकी बेहतरी की अकास है। PTV नेटवर्क की तेज रफ्तार तरक्की मुलाजमीन और इंतजामिया में हम आहंगी और अनथक मेहनत का नतीजा है। हमने अपना चैनल को HD किया, स्क्रीन को बहुत खूबसूरत बनाया। उसके अलावा जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। हमने नए न्यूज़ रूम बनाए हैं, हमने नया मीडिया रिसोर्स सेंटर बनाया है। PTV के स्टाफ की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का एहतमाम किया गया। खवातीन को इदारे में आगे बढ़ने के लिए यकसा मौके दिए जा रहे हैं। जो प्रॉफिट है उसके अंदर बहुत अहम रोल जो है वो हमारी स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस थी। उन स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस में हमारी लीडरशिप की बहुत बड़ी सपोर्ट थी, जिसमें मैं आई मस्ट गिव क्रेडिट टू फवाद साहब, हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, फ़रूख साहब हैं, मैडम शाहिरा हैं और MD साहब। नाजरीन का एतमाद बरकरार रखने के लिए मुसद्दिका खबरों की रिवायत को आगे बढ़ाया गया। PTV को बेसिकली एक वायबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो है, ये कोशिश हम कर रहे हैं और यही टास्क दिया था मुझे फवाद चौधरी साहब ने और MD साहब ने। और विद इन फ्यू मंथ्स जो है हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर पाए हैं और अब हम मार्केट फोर्स के तौर पे एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रैकन भी किए जाते हैं। 2021 में पाकिस्तान टेलीविजन ने OIC समेत मुख्तलिफ अहम तरीन कौमी और बैनुल-अक़वामी वाक़यात और इवेंट्स की यादगार कवरेज का एजाज़ हासिल किया। PTV स्पोर्ट्स ने खेलों के मद्दाहों को अपना गर्विदा बनाए रखा। PTV होम पर ऐसे ड्रामे पेश किए जा रहे हैं जिन्हें फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता है। PTV वर्ल्ड को पाकिस्तान का वाहिद अंग्रेजी ज़बान का चैनल होने का एजाज़ हासिल है। खबरों के शोर और बेलगाम दौर में PTV न्यूज़ आज भी अपना एतबार और वकार बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के तमाम चैनल्स न सिर्फ मुल्क का मस्बत तासुर उजागर कर रहे हैं, बल्कि नाजरीन को तफरीह, मालूमात और हालात हाजरा से भी आगाह कर रहे हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इनकलाबी इक़दामात के साथ साथ जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी के तारुफ ने मुल्क में रियासती मीडिया नेटवर्क को पिछले 3 सालों में तब्दील कर दिया है, जो कि डिजिटलाइजेशन की तरफ एक अहम कदम है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान और डिजिटल मीडिया विंग को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया गया है। तफसील बनाएंगे यासिर हुसैन। कौमी मीडिया की तब्दीली का सफर 2018 में शुरू हुआ, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इख्तिदार में आकर वज़ारत इत्तलात व नशरियात को अपने महकमों को डिजिटलाइज करने का काम सौंपा, ताकि मुल्क के बयानिए को बैनुल अक़वामी सतह पर मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। हमारी गवर्नमेंट अब पूरी तरह डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर जोर लगाएगी। वज़ारत इत्तलाआत ने इंसानी हकूक की वज़ारत के साथ मुश्तरका तौर पर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2020 का मुसव्वदा, जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस ने फिल्म पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार किया। पाकिस्तान टेलीविजन के नाजरीन की तादाद में 100% इजाफा हुआ और PTV न्यूज की SD से HD में मुंतकली का मंसूबा मुकम्मल हुआ। मयारी ऑडियो और वीडियो मवाद फराहम करने के लिए रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट का आगाज किया गया। पिमरा ने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 27 नए लाइसेंस जारी किए। PID को हमने पेपरलेस किया है। जितने जो इश्तिहारात हैं वो तमाम इश्तिहारात जो है वो ऑनलाइन जाते हैं। APP जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसको हमने जो है वो डिजिटल न्यूज़ एजेंसी जो है वो बना दिया है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया है, जो आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो रियासत का जो नैरेटिव है उसको फैलाने के अंदर एक बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा करता है। फिल्म इंडस्ट्री की तरवीज और तरक्की, मीडिया की तरक्की, सहाफ़ियों को मेरिट की बुनियाद पर माली इमदाद, वजारत और मुंसलिक महकमों के लिए E-फाइलिंग का निज़ाम, मयारी तालीम फराहम करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया यूनिवर्सिटी का क़याम मौजूदा हुकूमत के विजन के कुलीदी मकासद का हिस्सा है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, तवानाई का शोबा किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सनत का पहिया हो या घरेलू ज़रूरियात, इसके लिए बिजली, गैस और पेट्रोलियम की अहमियत एक मुसल्लमा हकीकत है। नाज़रीन, इसी की तफसील बताएंगे राहिल अंसार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद तवानाई के शोबे को खुसूसी अहमियत दी और इसमें खातिर खा कामयाबियाँ हासिल की। गुज़श्ता 3 साल में मौजूदा हुकूमत ने IPPs के साथ माजी में किए गए महंगे तरीन बिजली के मुआहदों को असर नौ मुरतब किया। सिस्टम में बिजली शामिल करने के लिए नया मॉडल मुतारफ कराया गया, जिसके तहत हुकूमत निजी कंपनियों से ओपन टेंडर के जरिए बिजली उस वक्त खरीदेगी जब उसे जरूरत होगी। चीन के इश्तराक से साहली इलाकों से 4000 मेगावाट बिजली मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने के लिए HVDC ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम का भी आगाज किया गया। नए सिस्टम के जरिए लाइन लॉसेस कम होकर 50% रह जाएंगे। ये गवर्नमेंट जो है, जो स्ट्रक्चरल डेफिसिट था, जो माजी की गवर्नमेंट्स ने पूरा नहीं किया था, उसको ब्रिज करिए। फिर जो उनके गलत मुआहदे थे उसको एड्रेस करिए। IPPs के मुआहदे को एड्रेस किया। LNG जो है, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को जो है उन्होंने 13% ऑफ द ब्रेंड किया, हमने 10% पे किया। 70% आवाम जो है वो 300 यूनिट से नीचे पाकिस्तान के इस्तेमाल करती है, उसको अब 4 रुपये यूनिट देते हैं। जो इन्होंने मुआहदा किया वो 18 रुपये यूनिट, 20 रुपये यूनिट, 22 रुपये यूनिट के हिसाब से किया हुआ है। तवानाई का शोबा माजी की हुकूमतों की नाकस मनसूबाबंदी के बायस हमेशा मिसाइल का शिकार रहा। 2018 में मुल्क में सिर्फ 2 LNG टर्मिनल काम कर रहे थे, जिनकी इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने ठोस इकदाम किए। 72% लोग जो है पाकिस्तान में, उनके घर में गैस की पाइपलाइन नहीं। 28% के लिए जो ये दावे करते हैं कि जी हमने LNG ले आए थे, तो वो ये तो बताएं कि उनके जो उस वक्त के रेट और जो उन्होंने, वो भी $15 की थी, तो वो $3 वाले को कैसे जा सकती थी। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हम वो मंगा के $3 वाले को दे दें, तो बाकी 72% का क्या कसूर है? उसको आप महंगा मिट्टी का तेल LPG दे रहे हैं। मुल्क में पानी और बिजली की जरूरियात को पूरा करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने डैमों की तामीर का बेड़ा उठाया। इस वक्त मुल्क के शुमाली हिस्सों में 3 डैम्स की तामीर का आगाज कर दिया गया है। डैमों की तामीर से साफ बिजली की वाफर पैदावार समेत ज़रई शोबे को भी फायदा पहुंचेगा। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आबी ज़खायर के लिए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा सालिह मोहम्मद खान ने कहा कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को कम करने और गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार ला रही है। मानसहरा में इस्तकबालिया से खिताब करते हुए सालिह मोहम्मद खान ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर की मईशत को नुकसान पहुंचा, जिससे महंगाई बढ़ी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में PTI भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। इससे कबल सालिह मोहम्मद मानसहरा पहुंचे तो दाता के मकाम पर पार्टी कारकुनों ने उनका भरपूर
भरपूर इस्तकबाल किया। और नाज़रीन, शहरी इलाकों की तरह देही इलाकों के अवाम को भी बिला इम्तियाज़ तरक्की के समरात से मुस्तफ़ीद करने के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। बहावलपुर में रूरल एसेसिबिलिटी प्रोग्राम 2021-22 के तहत 80 मिलियन रुपए की लागत से 5 किलोमीटर तवील कारपेटेड सड़क का इफ्तिताह रुकने पंजाब असम्बली समीउल्लाह चौधरी ने किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर तवील कारपेटेड रोड की बर्क़ रफ्तारी से मुकर्ररा मुद्दत में तकमील हुकूमत पंजाब की जानिब से इलाका मकीनों के लिए एक तोहफ़ा है। इससे अवामुन्नास को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात में कमी वाक़ होगी। तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने कहा कि शहरी इलाकों की तरह देही इलाकों के लोगों को भी बिला इम्तियाज़ तरक्की के समरात से मुस्तफ़ीद करना हुकूमत पंजाब का विजन है। साल 2021 का आखिरी दिन और कोयटा में हल्की बर्फबारी, बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो गया। कोयटा और कल्लात समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई है, जबकि ज़ियारत और संजावी में बर्फबारी जारी है। संजावी के इलाके वादी चुतेर, शिरन, नशपा, पोई, तंदवानी बर्फानी सिलसिला वक्फे वक्फे से शुरू है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। पाक ईरान सरहदी इलाकों में भी बूंदाबांदी की इत्तलात मौसूल हुई हैं। महकमा PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कौमी शाहराहों की बहाली के लिए PDMA की जानिब से भारी मशीनरी और अमला मुतल्लका अजला में मौजूद हैं। ज़राई माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि मौसम सरमा की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा ताकि तवील अरसे से जारी खुश्क साली का खात्मा हो। और आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, जबकि बालाई और मगरबी इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। ताहम शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में धुंध छाई रहेगी, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, जुज़वी अबर आलूद, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। स्कर्दू -11, गुपस -9, बाबूसर -8, कलाम, इस्तोर -6, हुंजा -5, गिलगित, बगरोट, चित्राल, दीर, पाराचनार और योब में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।